program, Mr. S. K. Singh, Honorable Chief Guest of this auspicious occasion, Research Advisor and Basketball Expert, Dr. S. N. Singh, Ovenier Convener, Mr. Pawan Kumar Rai, PUBT, Physical and Health Education, Kendriya Vidyalaya Air Force Station Mohanbadi, most distinguished parents, learned teachers and staff of this Vidyalaya, and my dear students. A very good morning to one and all present over this webinar organized to celebrate National Sports Day 2020 by Kendriya Vidyalaya Air Force Station Mohanbadi. To inspire the youth of our country when the whole country is celebrating this day with great spirit and enthusiasm, we, the KV Air Force Station Mohanbadi family, is gathering here in virtual form to remind the dreams of our energetic students. I, Mrs. Kavita Handik, a teacher of this Vidyalaya, welcome you all in this prosperous occasion of National Sports Day celebrated in the commemorate of the birth anniversary of Padma Bhushan, the wizard of hockey, Major Dhyan Chand. This is our tradition to lighten a lamp before starting a noble work. So before starting the program, I would like to call our respected principal, academician, Mr. S. K. Singh, to come upon the lightning arena and lighten the lamp. I would like to request the teachers of the Vidyalaya who are present there also accompany him. Students are requested to keep your mics mute, please, in mute position as you do in your live classes. Other teachers who are present there, please accompany Principal Sir in lighting the lamp. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, teachers. During this world pandemic, we all need a sound physical and mental health. To tell about how to keep ourselves healthy by maintaining fitness, one of our beloved student of class 9, Sania Kumari, is standing before you. Over to Sania. Sania, are you in the line? I think we should keep her program after, we can skip her for some time and we can ask her for after some other program. So let us start some another program. Sania will continue, resume after few minutes if she can. And we are proceeding to the next program. Please, children, please do not present by yourselves. Please do not present. Please do not present. Okay, we are proceeding to the next program. It is well said, Guru bin ज्ञान नहीं, ज्ञान bin आत्मा नहीं. ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही है देन. To enlighten us about the fitness and wellness, Fit KVN, one of our energetic teacher, Mrs. Sitha Sukla, is going to present her speech. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. A happy morning to our honorable chief guest, Mr. S.N. Singh, and respected principal, my colleagues, and we are here to celebrate the birthday of hockey wizard Major Dhyan Chand as National Sports Day. It is a big thing when all citizens of a country respect you like they want to birth sports day. Today we can find so many sports persons who are doing tremendous work in their respective sports. But
It is said that when Dhyan Chand came with his hockey in the ground, his hockey worked like a magic wand. He was regarded as the greatest hockey player in the history of sport. He earned 3 gold medals in Olympic for Indian hockey team. That was an era of Dhyan Chand. In his presence, India won 7 events of Olympic out of 8. He scored 570 goals in 185 matches, which is described in his autobiography, Goal. India was glinting in all over the world at that time. He taught us that it is very important to involve yourself in the physical activities as much as you can, and then even the moon can shine like it won't let you allow to open your eyes. Fitness and wellness associated with our body. When we talk about our body, it involves physical as well as mental fitness and wellness. You can engage your self fitness in yoga, running, physical exercise, or any sport that you like, which will help you all around development. Your mind will generate a lot of positive things. When your body is happy, it increases not only your life, but also the others' life who are connected with you. Fitness of body keeps you away from diseases, stress, depression, and negative thoughts. In this regard, MHRD launched an app, FitKavian, in all the Kendriya Vidyalayas to assess the fitness of our students in real time. It allows students to motivate themselves to improve their lifestyle, which should be active in this young age. At last, I just want to say if you are fit, you can keep your belongings fit and your environment fit and shine like a charm in your field. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your informative words. It will certainly help us all to be healthy. Now I request Mr. Pawan Kumar Rai, the convener of this program, to make us aware about the life and work of the hockey wizard Major Dhyan Chand. माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र नाथ सिंह सर, आदरणीय प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल मोहनबाड़ी, मेरे सभी शिक्षक साथी और सभी छात्र छात्राएं और जो भी इस प्लेटफॉर्म पे सुन पा रहे हैं, हमें चाहे पेरेंट्स हो जो भी सुन पा रहे हैं, उन सभी को आज खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 29 अगस्त भारतवर्ष में खेल दिवस मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, उनके जन्म के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में इतने किस्से हैं जो अभी खेल जगत में इतने किस्से किसी और खिलाड़ी के नहीं होंगे। आप हर व्यक्ति से इनके कुछ नए किस्से सुन सकते हैं, इनकी कुछ नई कहानियां सुन सकते हैं, इनके कुछ महान घटनाएं सुन सकते हैं। हम भी इनके कुछ घटनाओं की चर्चा करेंगे जो ऐतिहासिक हैं। कुछ घटनाएं जो लगभग सभी लोग जानते हैं। हिटलर की बात हो या डॉलरमैन, क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी, उनका वक्तव्य हो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। एक बार मैच खेलते हुए, वो 14 अगस्त का दिन था, जिस कारण से हॉकी मैच नहीं हो पाया था और ध्यानचंद जी और बाकी भारतीय खिलाड़ी टीम उस समय मैच खेलने के लिए तैयार थी, लेकिन नहीं हो पाया था मैच। संयोग से 15 अगस्त के दिन वह मैच था और प्रैक्टिस मैच में भारत जर्मनी से हार चुका था। अब भारत के कोच को परेशानी थी, खिलाड़ी भी परेशान थे कि यह मैच कैसे जीता जाए। भारत के खिलाड़ी इनको ड्रेसिंग रूम में ले गए, समझाया, भारत का झंडा दिखाया, उत्साह किया और वह मैच भारत जर्मनी से 8-1 से जीता।
और तानाशाह हिटलर के लिए कहा जाता है कि इनका मैच देखते हुए उनके मन में इनके लिए ऑफर किया कि आप हमारे देश के लिए मैं आपको अपने देश में कर्नल बना दूंगा। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने भारत माता के सम्मान का ख्याल रखते हुए उन्होंने हमेशा भारत के लिए खेलना चाहा और उन्होंने उस ऑफर को ठुकराया और भारतवर्ष के लिए जीवन पर्यंत खेलते रहे। एक सैनिक के रूप में यह अपने खेल जीवन की शुरुआत किए थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 1905 ईस्वी में। तो यह तो सामान्य घटना है जो सभी लोग जानते हैं। और जैसे डॉन मेसी भी घटना आती है, डॉन ब्रैडमैन के हॉकी में गोल मारने का स्कोर देखते थे तो उन्होंने कहा यह तो लगता है कोई क्रिकेट में रन बना रहा है, इस तरीके से गोल मारते हैं। एक घटना और याद आ रही है, एक मैच में किसी खिलाड़ी ने इंटेंशनली जानबूझकर अपने स्टिक से इनके हाथ पर स्टिक चला दी जिससे कि इनका हाथ में चोट लगे और ये खेल न सके। इन्होंने क्या किया, यह बहुत ही मोटिवेशनल हमारे जीवन को भी बहुत प्रभावित किया। इस घटना में मैंने बहुत सीखा। इसमें हुआ क्या कि इस खेल को देखकर उन्होंने उस खिलाड़ी को भी हम वैसी चोट पहुंचाएंगे, वही ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे जैसा कि इसने किया हमारे साथ। इन्होंने उस चोट के बदले 24 गोल मार कर दिए, जिसमें भारत की टीम ने उस प्रतिद्वंदी टीम के साथ 24 गोल मारे, जिसमें से 8 गोल इनके थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने साथ किए हुए व्यवहार का प्रतिकार किया। तो ये हैं हमारे भारत के महान खिलाड़ी जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा है। अब मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ इस खेल दिवस के माध्यम से। मुझे जहाँ लगता है यह मेजर ध्यानचंद जी के लिए विशेष रूप से हमारा सम्मान होगा अगर हम उनके आइडियोलॉजीज को फॉलो करें, अगर हम उनके जो इस महान गौरवशाली भारत के इतिहास में जो इनका सराहनीय प्रदर्शन रहा है, जो नाम रोशन किया है, उनके कदमों पे हम अगर आगे बढ़े तो ये निश्चित रूप से यह उनकी जयंती का अच्छा फल होगा। हम यह कहते हैं कि आज के परिवेश में इसको से जोड़ें, इस जो अवसर खेल की भारतवर्ष मना रहा है आज के परिवेश में इसको कैसे समझें, इसको समझने के लिए थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता होगी। हम आप सकते हैं अगर हम बोलते समय कुछ शब्दों का प्रयोग न कर पाए अच्छे से, आपको समझाने में कुछ त्रुटि हो तो आप हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी छात्रों से और जो भी सुन रहे हैं उनसे आशा करता हूँ कि हमारे शब्दों की जगह हमारे भावनाओं का भी समझने का, उसका चिंतन करने का प्रयास करते। पहला तो फिटनेस कितना आवश्यक है इसका सब जानते हैं, इसका चिंतन किया जाता है। सब लोग समझते हैं कि फिटनेस से ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब पे असर पड़ता है। इन सबको दूर करने में फिटनेस सहायक होता है। और यह केंद्रीय विद्यालय संगठन भी CRD मिनिस्ट्री के द्वारा, सरकार के द्वारा यह एक अभियान भी चलाया जा रहा है फिट इंडिया फिटर रन के रूप में। तो अगर हम जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को आइडियोलॉजी मामले में अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से अब फिटनेस का ख्याल रखते हुए एक अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के, अपने को स्वस्थ रखने के आगे क्रम में आगे बढ़ना पड़ेगा। इस फिट इंडिया फ्रीडम रन के अभियान में अपने को निश्चित शामिल करना होगा। साथ साथ जो इसके आइकन हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री किरण रिजिजू जी, उनके नेतृत्व में यह प्रोग्राम चल रहा है। निश्चित रूप से यह सभी बच्चों के लिए सोचने का विषय है और समझने के साथ इस कार्यक्रम में भागीदारी करने की स्थिति होनी चाहिए। दूसरी बात है, एक और अभियान चल रहा है भारतवर्ष में साथ साथ माई बुक माई चैनल। इसमें आप सभी को, सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को भी है, सभी के लिए एक ऐसी अपने लिए का चुनाव करना है जो आइडियल हो, अपने लिए अच्छे विचार लाती हो,
उसका एक चयन करके आपको एक अच्छी पुस्तक के माध्यम से अपने विचारों के परिवर्तन के बारे में आगे बढ़ने। ये दोनों अभियान एक साथ कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी व्यवसाय का हो, प्रोफेशन का हो, शिक्षक हो, खिलाड़ी हो, छात्र हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, अगर दोनों को एक साथ लेके बढ़ेगा तो मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से एक अपने क्षेत्र में बहुत ही कर पाएगा, बहुत अच्छा कर पाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, इन दोनों के अच्छे होने से निश्चित रूप से समाज के अंदर खुशी आएगी, परिवार में खुशी आएंगी, समाज साथ बनेगा, सख्त बनेगा और जो प्रगति करने के जो हैं उन सब में निश्चित रूप से हमारा देश प्रगति करेगा, हमारे बच्चे निश्चित रूप से, हमारे छात्र निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि फिट इंडिया और माई बुक माई फ्रेंड इन दोनों के बारे में आपको जितना भी पता है अच्छी बात है। इसके बारे में और गहनता से आप चिंतन करेंगे, आप इस पर विचार करेंगे और इन दोनों को विचार करते हुए, चिंतन करते हुए इसमें जरूर आप अभियान में शामिल होंगे और निश्चित रूप से इस अभियान में शामिल होने से एक बड़ा समाज, परिवार का, देश का विकास और प्रगति होगा। बस इतनी बातें हैं और हम सब लोग मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय धन्यवाद देता हूँ जो हमें यह अवसर हुआ। मुख्य अतिथि का भी स्वागत करता हूँ विद्यालय में, डॉक्टर एस सिंह सर का जो बास्केटबॉल एक्सपर्ट हैं और रिसर्च भी हैं। रिसर्च के क्षेत्र में चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में आपको कोई भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मुझे आशा है कि आप सर से सहयोग ले सकते हैं। सर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह सभी छात्रों के लिए जो भी कुछ सीखने की लत है, जिनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। तो इन्हीं के साथ एक बार फिर से आप सभी हार्दिक शुभकामनाएं। जय आपको मैं Thank you, sir. Thank you for giving us so many informations about the legend and highlighting many incidents related to that great player. It was really inspiring words you have delivered. For the successful execution of any program, a roadmap with a guide of it is the foremost requirement. And for this purpose, our respected principal, Mr. S. K. Singh, is always being a volunteer. Now I request him to come forward to present his valuable speech. Over to sir. Thank you very much, ma'am. First of all, I welcome to Honorable Dr. S.N. Singh from my core of my heart, and from this KB Mohan Badi family. Of course, this is a tough time for this pandemic situation, so we are celebrating this sports meet online. So I welcome you here for this. So again, for now, good morning and everyone, and respected chief guest, Dr. S.N. Singh, dears, learned teachers, my dear students, and all this KB Mohanbadi family. Today is a very special occasion for the KB FS Mohanbadi. We are celebrating National Sports Day 2020 together through this Google Meet. So today, India celebrates National Sports Day to commemorate the birthday anniversary of hockey wizard Dhyan Chand, who was an integral part of 1928, 1932, 1936 Olympic gold medals winning squad. Today, we salute the hockey legend who made India proud on many such international platforms.
Sports has the power to change the world. It is a powerful tool to strengthen social ties and promote sustainable development and peace, and as well as solidarity and respect. Also, sports make our life interesting, teaches us to work hard and push our limit to reach a new high. Sports teach discipline, respect, friendship, leadership, teamwork, overcoming adversity also. It is an important part of the student's growth and development. But the remaining active in these challenging times is really a hurdle to cross. As the COVID-19 pandemic is spreading to more regions of the world at an alarming rate, physical and social distancing practices are becoming commonplace to stop the spread of this disease. The closure of gym, sports facilities, stadiums, and playgrounds mean that many of us are not able to actively participate in individual or group sporting or physical activities, nor watch live sporting events. As a result, the sporting community is facing seriously serious challenges due to measures imposed in the countries around the world. Many of you might be facing difficulties to be physically active like you used to be. You cannot play with your friends or even take an evening walk together. A good game of basketball or cricket with your friends might seem like a distant dream now. But that does not mean we should stop being physically active. Nor should we disconnect from our sports coaches, teammates, and friends who not only help us to stay physically fit but also socially active. The World Health Organization itself recommends 150 minutes of the moderate physical activity per week because staying physically fit is more important now than ever. Till science succeed in finding a COVID-19 vaccine, physical fitness is our only shield against the disease. Through our unique individual skills and collective power, we can come together and share creative ways to improve our health and well-being through the sports and physical activity. Even from the confines of our own homes. That is our mission today. A mission to ensure that we will remain physically fit and active even inside our home. So KB Mohanbadi is celebrating National Sports Day through the online medium of Google Meet. A healthy society is building block of the productive nation. Today, when India is aiming for Atmanirbhar Bharat, we need healthy citizens as our soldiers. Let's pledge to remain physically fit and active through events like Fit India Run. Let's take an oath to be a strong barrier to lead our country to a self-reliant future. Thank you, and thank you very much. Thank you very much. Over to Kavita. Thank you, sir. Thank you for your encouraging speech and tips of fitness. On this auspicious occasion of celebration of National Sports Day 2020, we all are lucky enough to have a personality of having vast experience, knowledge, and true spirit of sportsmanship as the chief guest of this function. Now, I would like to invite our chief guest, research advisor and basketball expert, Dr. F.N. Singh, to deliver his speech. Sir, please. हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऑडिबल और नॉट? Audible, sir. Audible. ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइलेंस. Yes, sir. कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर. मेरा साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला. आप सभी को नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to give my sincere thanks to
respected Principal Sir S.K. Singh, Kendriya Vidyalaya Mohanbadi, and Pawan Kumar Rai Sir, who is the convener of this program, Physical and Health Education Teacher, KB Mohanbadi, for giving me opportunity to interact you all on this special National Sports Day. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो हमारे देश के महान और विश्व विख्यात हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। वो उन्हें हॉकी का जादूगर यानी विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता था। इनकी अगुवाई में हमारे देश ने हॉकी में सन 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स, 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स और 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किए और भारत का गौरव बढ़ाया। हम बात करते हैं इनके जोश जुनून की जो हॉकी के प्रति इनकी थी। वैसे तो ये उस दौरान मिलिट्री में एक सैनिक के रूप में कार्यरत थे, ये बात है सन 1922 की, लेकिन इन्हें अपनी ड्यूटी भी करनी थी और साथ ही साथ हॉकी से जो जुड़ाव था इनका तो उसमें प्रैक्टिस भी करनी थी। और इनका जो मुख्य जुड़ाव हुआ हॉकी खेल से ये सेना में भर्ती होने के बाद ही शुरू हुआ। इनके कोच श्री पंकज गुप्ता जी हुआ करते थे जिन्होंने हॉकी में इनको कुछ ऐसे विशेष टिप्स दिए जिससे इनका रुझान और ज्यादा हॉकी में लग गया। और सेना में ड्यूटी के बाद इन्हें समय बहुत कम मिलता था, इसलिए ये क्या करते थे, जब रात में चांद निकल आता था उसकी रोशनी में ये प्रैक्टिस किया करते थे। एक्चुअल में इनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन इनके दोस्तों ने जब ये चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे या रात को प्रैक्टिस करते थे तो इस वजह से इनका नाम ध्यानचंद जोड़ दिया गया और आज हम इसी नाम से जानते हैं अपने ध्यानचंद जी को। खैर, ये इनकी मेहनत, लगन, जोश और जुनून का ही नतीजा था कि ये एक मशहूर और विश्व विख्यात हॉकी खिलाड़ी बने और ये इनकी प्रैक्टिस की देन थी। हमें इनकी प्रैक्टिस सीखे, अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छे खिलाड़ी बने। ऐसा ही एक किस्सा इनके जीवन से जुड़ा हुआ है, वैसे तो हम सभी जानते हैं, चर्चा में भी होगा। एक बार किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में ध्यानचंद जी मैच खेल रहे थे। मैच के दौरान जैसे सामान्य रूप से सब खेलते हैं खिलाड़ी, और ये गोल करने के मास्टर थे यानी गोल हिटर थे। उस दिन उस मैच के दौरान इनका भी गोल पोस्ट में नहीं जा रहा था, बाहर चला जा रहा था, या एक गोल अंदर गए लेकिन ज्यादा गोल उस दिन बाहर जा रहे थे। इनके साथी खिलाड़ी थे, उन्होंने थोड़ा सा इनसे बात की बीच में ही कि भाई क्या बात है ध्यानचंद, ऐसा लग रहा है आज मैच हम लोग के हाथ से निकल जाएगा अगर तुम्हारा प्रदर्शन ऐसा ही रहा। इनको भी लगा आज कुछ गड़बड़ सी लग रही है, कुछ सही नहीं लग रहा। मैच के दौरान फिर जो हाफ टाइम आया तो इन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे कुछ गोल पोस्ट में फर्क लग रहा है, और इन्होंने बात की वहाँ के ऑर्गेनाइजर से, ऑफिशियल से, रेफरी से। तो उन्होंने इनकी बात या पूरी टीम की बात मान ली और गोल पोस्ट का माप कराया गया। माप कराने के बाद ये पता चला कि वाकई में जो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो लंबाई चौड़ाई होती है उससे कम माप था। इस बात को स्वीकार किया गया और तुरंत संशोधन भी किया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके मेहनत और प्रैक्टिस का एक प्रैक्टिस का जरिया था, या इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की थी, इनको अंदाजा लग गया कि गोल पोस्ट में कुछ फर्क है। ऐसा हम सभी कर सकते हैं कि अपनी प्रैक्टिस से अपने जीवन में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप इनसे संदेश ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ किस्सा, और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा जुड़ा क्योंकि इनका एटीट्यूड वैसा बन गया। हमें अपना एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ता है अच्छी प्रैक्टिस के लिए। हमें अपनी सोच उस तरफ ले जानी पड़ती है। एटीट्यूड से जुड़ा एक किस्सा हमारे भारतीय क्रिकेट जगत से भी आता है। ये बात है सन 1983 वर्ल्ड कप, जब भारत
फाइनल में पहुंचा था और उसका मुकाबला उस समय की महान टीम वेस्ट इंडीज से था। वेस्ट इंडीज को ऐसा लगता था कि भाई फाइनल में अगर हमें भारत से मुकाबला करना है तो वो आश्वस्त थे कि हम तो ये मैच जीत गए। वो अपने आप को जीता हुआ समझ रहे थे और भारत उस समय एक सामान्य सी टीम थी। ये केन प्रकार नो डाउट ये फाइनल में पहुंचे थे और मैच का टॉस हुआ। टॉस वेस्ट इंडीज ने जीता और भारत को बैटिंग करने का मौका दे दिया और भारत को उन्होंने बहुत ही आसानी से 183 रनों पे समेट भी दिया। और फिर वो बैटिंग का टाइम आया और वो बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो। नो डाउट उनके जो मेन बल्लेबाज थे, वैसे तो कई बल्लेबाज थे, क्लाइव लॉयड, उन्होंने 13 गेंदों में 8 चौके लगाए और ऐसा लगा कि मैच वहीं से वेस्ट इंडीज के तरफ जा चुका है। लेकिन उसी दौरान कुछ गेंद के बाद एक ऐसा वाकया हुआ कि कपिल देव जी ने एक कैच पकड़ा क्लाइव लॉयड का उल्टी दिशा में दौड़ते हुए और वहीं से मैच का पासा पलटा और भारत जो है धीरे धीरे मैच पे अपनी पकड़ बना ली भारत ने और वो मैच जीत गया, जो हमारे लिए मेमोरेबल है, ऐतिहासिक है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। खैर, ये तो बात थी फाइनल रिजल्ट की। वेस्ट इंडीज को इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी शेर को कोई बंदर पेड़ से उतर के आए और थप्पड़ मार के वापस पेड़ पे चढ़ जाए। इस तरह से बिहेव उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था। खैर, इस बात का वो बदला लेने के लिए, विश्व को संदेश देने के लिए कि भाई हम नंबर 1 थे और नंबर 1 हैं, हम इस बात का बदला लेंगे। इन्होंने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की, दबाव बनाया कि आप भारत के साथ हमारे मैच का टूर्नामेंट रखिए। खैर, बीसीसीआई मान भी गई। कुछ समय बाद मैच की एक टूर्नामेंट में जिसमें 6 वनडे और टेस्ट मैच रखे गए। 6 वनडे जो हुए भारत के साथ वेस्ट इंडीज के, इसमें जो 6 मैच थे उससे वेस्ट इंडीज ने 6-0 से भारत को क्लीन स्वीप कर दिया। अब बारी आई टेस्ट मैच की। टेस्ट मैच में भी पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज जीत गई और वो भी एक पारी और 250 रनों से वेस्ट इंडीज जो है ये मैच जीत गई, पहला टेस्ट। काफी शर्मनाक थी भारत के लिए बात और वो इस बात को साबित कर रहे थे कि नो डाउट भारत ने, होता है ना, बाई चांस बाई लक, ये वर्ल्ड कप जीत लिया। और दूसरा टेस्ट शुरू होने के पहले काउंसलिंग शुरू हुई भारतीय टीम की और उस समय के हमारे जो ओपनर बल्लेबाज हुआ करते थे सुनील गावस्कर जी, उनपे ही टीम का सारा दारोमदार हुआ करता था। उनको काउंसिल किया गया, शुरुआत उनसे हुई। उनसे बताया गया कि आप ओपन करते हैं, जैसा आप खेलेंगे वैसी पूरी टीम खेलेगी। तो उनसे बताया गया कि अब आप डिफेंसिव बैट्समैन के रूप में बैटिंग नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप अटैकिंग बैटिंग करेंगे। नो डाउट उस समय के जो वेस्ट इंडीज के बॉलर हुआ करते थे वो 90 और 95 मील की स्पीड से बॉलिंग किया करते थे, बॉल हवा नहीं लगती थी बल्लेबाजों को। खैर, फिर भी मैच शुरू हुआ। पहला ओवर मैल्कम मार्शल जो वेस्ट इंडीज के ओपनर बॉलर थे लेके आए और वो बहुत ही आश्वस्त थे कि लगातार कई विकेट ले लिए जाएंगे और ये मैच भी हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन उनके पहले ही ओवर में सुनील गावस्कर जी ने 4 चौके जड़े, लगा 4 चौके, और मैल्कम मार्शल भी बिल्कुल स्तब्ध रह गया कि क्या हो गया इस सुनील गावस्कर को। कहा ये 20-25 बॉल 50 बॉल तक तो एक भी रन नहीं बनाता था, आज 4 चौके पहले ओवर में, बिल्कुल। और वहीं से जो पलटा, भारतीय टीम का एटीट्यूड बदला। तो मैल्कम मार्शल अपनी बुक में भी लिखते हैं, फ्रॉम दैट डे Sunil Gavaskar changes his attitude from defensive to attacking and India goes for a new cricket team or new world of a cricket. तो ये attitude change का एक उदाहरण है जिसे हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, लास्ट में मैं आपके सामने एक और लाइन बताना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। The most important discovery
for this whole life is that anything is possible for your future if you change your attitude. इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, और जब आप एटीट्यूड चेंज करेंगे तो आप हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहेंगे और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से अपने प्रिंसिपल सर का, पवन राय सर का और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, टीचर्स का और सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद और आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इतना समय दिया और धैर्यपूर्वक मुझे सुना। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। अब मैं कविता मैम को हैंड ओवर करता हूँ, आप आगे के प्रोग्राम शुरू करें। थैंक यू। Thank you, sir. We are pleased to hear your speech full of energy and wisdom in the field of games and sports, along with the information given by you. I hope our students will certainly be benefited by your words about attitude and motivation. Now I request Mrs. Mamta Rajput, PGT Computer Science of Kendra Vidyalaya Mohanbari, to play the presentation through a video clip. से बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वा कर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन अपने ज़माने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई थी, मानो वो कोई देवता हो। पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बॉल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे। वो बिल्कुल ड्रिबल नहीं करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक इंच का मिना हुआ पास देते थे, जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है उसको कोई तकलीफ ना हो। उसके राइट फुट के सामने बॉल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो। उन्होंने बॉल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बॉल जाना है। उनकी स्कोरिंग पावर बहुत ही अच्छी थी। ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे। ध्यानचंद की पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी ने एक बार बीबीसी को उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। कलकत्ता गए खेलने को तो एक पिलियन ने इनको एक सर में होकी मार दिया। उन्होंने लड़के का पिलियर का कंधा थपथपाया, शाबाश बेटा, कोई बात नहीं है। अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का, 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोक दिए। तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे केशव दत्त ने एक बार हमें बताया था कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं। याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल, माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देखे 30 गज लंबा पास दिया था, जिस पर बुरुचागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की संपूर्णता का अंदाजा इसी बात से होता है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल कर पाए। केशव दत्त का कहना है,
जब हर कोई सोचता था कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं, वो गेंद को पास कर देते थे, इसलिए कि वो स्वार्थी नहीं थे, जो कि वो नहीं थे, बल्कि इसलिए कि विरोधी उनके इस मूव पर हतप्रभ रह जाएं। जब वो इस तरह का पास आपको देते थे तो जाहिर है आप उसे हर हाल में गोल में डालना चाहते थे। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे में उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। बाद में उनसे जब उनकी इस अजीब हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था। केजी कक्कड़ अपने जमाने के नामी कमेंटेटर और हॉकी खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने बीबीसी को पाकिस्तान में ध्यानचंद की लोकप्रियता का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में जश्न आज़ादी मनाया जाता है। मुझे 2 दफा मौका मिला कि मैं उस जश्न में शामिल हूँ। पहले 1949 में, जबकि भारत की इंडियन हॉकी फेडरेशन की टीम अफगानिस्तान गई हुई थी, और दूसरी दफा 1952 में, जबकि उन्होंने दादा ध्यानचंद को बुलाया हुआ था एज चीफ गेस्ट। ये जो जर्नी थी 1952 की, वो हमने दिल्ली से पेशावर तक बाई ट्रेन की, और लाहौर पर जब हम आए वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, तो इतना हजूम था कि वहाँ के जो प्लेटफॉर्म टिकट थे वो खत्म हो गए। हर एक चाहता था कि वो दादा ध्यानचंद से मिले। और आप अगर जानते हैं कि दादा ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में थे, और सारी हॉकी उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की तरफ से जेल में ही खेली, तो वहाँ के लोग जो थे वो दीवाने थे, फिदा थे, वो चाहते थे कि इस व्यक्ति के हम दर्शन करें। और जब वो गाड़ी पेशावर पहुंची, जो कि आखिरी पाकिस्तान का रेलवे डेस्टिनेशन है, तो वो गाड़ी 3 घंटे लेट थी, और हमारे पास कितना खाना था मुझे मालूम नहीं, तो उस खाना को डिस्पोज करते हुए हमें बहुत मुश्किल हुई। 1936 के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल नहीं मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को ये दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। ध्यानचंद के पुत्र और म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार ने बीबीसी को बताया। 72 की बात है, मैं प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी ग्राउंड के ऊपर, और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकाएक मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर के ऊपर एक शख्स चले आ रहे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इंक्वायर किया कि अशोक कुमार कौन है, तो उन्होंने पता तो मुझसे मिलने आए, और उसके बाद वो इतने भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझसे बातें करी ध्यानचंद के बारे में। और उस टाइम की कटिंग्स, जो 36 की कटिंग्स जर्मन में निकली थी, वो उन्होंने मुझे दिखाई, और एक बंडल जो था वो पूरा दिखाया कि ये तुम्हारे पिताजी ध्यानचंद, फादर, योर फादर वाज लाइक दिस, लाइक दैट, लाइक छोटी टूटी फूटी अंग्रेजी में, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हो। तो ध्यानचंद के अंदर ऐसी क्या खास बात रही होगी उस जमाने में। 36 में ब्रिटिश आर्मी में रहे और सिपाही से मेजर के पद तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस जमाने में, जबकि हम गुलाम देश के निवासी थे। लेकिन उन्होंने भी उतनी महत्ता दी उनको कि एक मामूली सिपाही को उन्होंने एक ऑनरी मेजर का पद दिया। भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदनलाल सहगल को ले आए। ध्यानचंद पर लिखी एक किताब में निकेत भूषण लिखते हैं, हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है। मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई आधे समय तक एक गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा कि क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने हमें आप सुनाएंगे। सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो तक आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी, लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल ने कहा कि गाना गाने का उनका मूड उखड़ चुका है। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने नाहक ही उनका समय खराब किया। लेकिन अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी, और उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए। ना सिर्फ गाने गाए, बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की। Honorable Chief Guest Sir, Dr. S.N. Singh, Research Advisor, Basketball Expert, Principal Sir, learned teachers and dear students, good morning to all.
It is an honor and privilege for me to propose vote of thanks on National Sports Day celebration in virtual mode. First of all, I would like to convey my sincere thanks to Honorable Chief Guest Sir on behalf of entire KV Mohanbadi family. I would like to express my heartfelt gratitude to the guest of honor of today, Dr. S.N. Singh. Sir, your eminent presence has indeed made this event a memorable one, and we unitedly thank you for your gracious presence. I would also thankful to our principal sir for their constant motivation and guiding us. I would also like to thank Shri Pavan Kumar Rai, physical education teacher, who arranged this program, and the wonderful team of teachers. Last but not the least, on behalf of Principal Sir and entire teaching and non-teaching faculty, I would also like to thank our dear students for patiently viewing the program and participating in various activities conducted during last few days. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. To please stand up for national anthem. Okay. Okay, school and everyone. Bharat Mata ki. भारत माता की ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। अब आप लोग डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।